Hello students, today I will discuss with you some problems of continuity. Last time I have told you the definition of continuity and what do you mean by continuous function. So you all know that a function is said to be continuous at a point A if limit x approach to A, f of x equal to f of A. This one is called continuity at a point x equal to A. If A is any real number, so it means A belongs to the domain of function. And if function is continuous at this point, a general point, then your function is called continuous. I have also told you about the continuity of a function at an interval, open interval, as well as closed interval. In open interval, A belongs to in between interval AB, and in case of closed interval, you will prove 3 steps: right continuity at A, left continuity at B, and continuity in open interval AB, like this. So I hope that you have done all this. Okay. So today I will take some problem of the continuity. Okay, see here is a question. For what value of lambda the function defined by f of x equal to lambda into x square minus 2x if x less than equal to 0 and 4x plus 1 if x greater than 0 is continuous at x equal to 0. ठीक है कि lambda की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है एंड फॉर व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. और साथ ही आपसे बेटा पूछा हुआ है continuity of x equal to 1. So first of all, you know the definition, f will be continuous at x equal to 0. So continuity at a point. So you know the definition, limit x approach to 0, f of x equal to f of 0. और इसी में अगर आपके पास लेफ्ट और राइट है तो if limit x approach to 0 negative f of x equal to limit x approach to 0 positive f of x equal to f of 0. Beta, you all know that when to use left hand limit and right hand limit, and when to use directly this limit x approach to 0. For example, here function changes for less than 0, separate function, and for greater than 0, it means this required the knowledge of left hand limit and right hand limit. Clear or not? So that is why we have written this step. So limit x approach to 0 negative fx means 0 negative means less than 0. So we have taken this value of the function lambda into x square minus 2x when x less than 0. And in case of greater than 0, we will take 4x plus 1. So here x approach to 0 positive means x greater than 0. So we have taken 4x plus 1 equal to f of 0 is 0. So from here you will get lambda into put the value 0 ही होगी. So lambda into 0 equal to 0 plus 1. So what you will get? 0 equal to 1 equal to 0, which is not possible. So it means lambda की जो मर्जी वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ तो 0 ही आएगा चाहे जो भी वैल्यू हो, तो इसका भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता. So answer is f is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda. So it means there is no value of lambda which makes this function as a continuous function. And second question is, what about the continuity at x equal to 1? So f will be continuous at x equal to 1 if limit x approach to 1, f of x equal to f of 1. So again, because now limit is x approach to 1, x approach to 1 means x 1 को approach कर रहा है तो आपको पता है 1 चाहे वो slightly less 1 होगा या slightly greater 1. So you will take this function only x greater than 0. ठीक है, 1 के क्लोजर होगा तो 4x plus 1 नहीं होगा. So no need to find left hand limit and right hand limit. So write the direct value of limit x approach to 1 fx is
nothing but 4x plus 1. So 4 into 1 plus 4. So what you will get 4 into 1 plus 1. डायरेक्ट भी आपके पास f1 निकालेंगे तो इसी में पुट किया जाएगा because x greater than 1 पे ही आएगा. So 5 equal to 5, which is true for all value of lambda. So it means function is continuous at x equal to 1 for all value of lambda. अब lambda के ऊपर बेटा डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब lambda जो मर्जी होगा this function is a continuous function. और पीछे आपने देखा 0 पे continuous है, there is no value of lambda, where the function is continuous, and here lambda should be any value. Lambda can take any value. This function is always continuous at x equal to 1. ओके ये मैंने आपको वैसे पिछली बार भी कह दिया था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन. ठीक है, फंक्शन है एंड कोसाइन फंक्शन. तो मैंने साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर करके बताऊंगा. साइन फंक्शन मीन्स साइन एक्स. तो मैंने आपको बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस. फिर भी कैसे करना, मैंने यहाँ पर आपके लिए ये प्रॉब्लम भी ले ली. सेम वे से आप cos x, tan x, cot x, secant x को करेंगे. तो fx equal to sin x, you all know domain is all real number. तो जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मीन दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑल ओवर इट्स डोमेन. तो your domain is real number, so we take not a fixed number a but general number a. A is any real number, so we will check the continuity at this point. So limit x approach to a, f of x, limit x approach to a sin x. अब बेटा लास्ट ईयर आप लोगों ने फार्मूला किया हुआ है लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, a के लिए आपने कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं किया था, तो इसलिए हम 0 बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे. पुट x इक्वल टू a प्लस h एंड नाउ एज x अप्रोच टू a, अगर x की जगह मैं a लिखूंगा, a एंड a कैंसल, h अप्रोच टू 0, मतलब x a को तब अप्रोच करेगा जब ये 0 होगा, तो इसीलिए लिमिट h अप्रोच टू 0 चेंज हो जाएगा. So it means limit h approach to 0 sin a plus h. So substitute in place of x a plus h, and now you know the formula sin a plus h sin a cos h plus cos a sin h, and just substitute the value now. h approach to 0, क्योंकि आपको बताया हुआ लिमिट में डायरेक्टली वैल्यू पुट की जाती है अगर वो अनडिफाइंड नहीं हो. तो ये sin a बन गया, cos h cos 0 you know 1, and here sin h sin 0 0 होता है, cos a into 0 equal to 0. So this becomes sin a equal to ultimately sin a, and sin a is nothing because fx sin x hai, so f of a is also sin a. What we have proved here, the limit x approach to a, f of x equal to f of a. So it means this one is clear to all of you, so you can do. Therefore, our function is continuous function for all x belongs to R. Now, बेटा come to the next question. जैसे हमने ये किया sin x, वैसे ही cos x होगा. सेम वे से cos a plus h का फार्मूला cos a cos h minus sin a sin h, like this आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी. sin h उसमें भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ cos a cos h होगा, तो आंसर cos a के इक्वल f of a. पैरेलली मतलब you can do. जस्ट आपके लिए डेमो के लिए बता. Determine if f defined by this fx equal to x square into sin 1 by x, if x not equal to 0, and 0 if x equal to 0. This question is very important question. पहले भी आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है. One of the very important question you can say VVI. आप लोगों ने बेटा ध्यान रखना इसमें कि कैसे करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो आप कैसे शो करेंगे, देखिए. डेफिनेशन यू ऑल नो, इफ व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस if limit x approach to a, f of x equal to f of a for all a belongs to domain, because this function is defined for all value x not equal to 0 as well x equal to 0, means x is all real number, so domain is real number. So let us take a is any real number. So it means function is continuous if limit x approach to a, f of x equal to f of a. No need of left hand limit and right hand limit, but अगर आपको definition में left hand limit equal to right hand limit f of a होना चाहिए.
तो अब मैंने ए कोई भी नंबर ले लिया जहां पर मैं चेक करूंगा रियल नंबर, एनी रियल नंबर, बट इसको 2 केसेज में डिवाइड करूंगा, इफ ए इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0. तो केस 1 ए नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए 0 नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? तो बेटा वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स. ये वैल्यू आ गई आपके पास, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. अब आपको पता है ए कोई भी वैल्यू है 0 के एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो 1 बाई एक्स भी डिफाइंड है, ए स्क्वायर साइन 1 बाई ए, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ ए. So it means f is continuous for all a belongs to R where a not equal to 0. तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें प्रॉब्लम लगती है तो कहीं ना कहीं वही लगता है कि जब 0 होगा तो तब अनडिफाइंड होने की, अदरवाइज दिस वन इज अ डिफाइंड. तो लिमिट का रूल आप जानते हैं कि वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम, अगर वो कहीं भी 0 बाई 0 फॉर्म ना बनाए. तो देखो इजिली डेफिनेशन प्रूव हो गई, तो इट मीन ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो फंक्शन क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस है. अब मेरे को देखना है कि अगर ए 0 होगा तो क्या होगा. ये ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0 मीन्स अगर ए 0 होगा, एक्स ए है, अगर ए 0 है तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? 0 के. और अब आगे आ जाओ बेटे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0. अब देखो एक्स अप्रोच टू 0 का मतलब क्या होता है? एक्स अप्रोच टू 0 मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बट एक्स या तो स्लाइटली लेस होगा या स्लाइटली ग्रेटर. तो इसका मतलब x 0 के इक्वल नहीं है जब हम लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं, तो फिर से फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. अब बेटा यहाँ पर देखिए x अगर 0, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 1 बाई 0 अनडिफाइंड सिचुएशन है, बट x एग्जैक्टली आपको पता है कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब साइन 1 अपॉन 0 क्या आएगा? साइन 1 अपॉन 0, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में. आपको पता है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ये सिचुएशन है, लेकिन आपको पता है साइन ऑफ एनी रियल नंबर वो हमेशा ही आपको पता है कहाँ लाई करता है, -1 और 1. इस नंबर को बेटा यही मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया, ये हमेशा ध्यान रखना. नहीं तो कैंडिडेट कहीं कहेंगे कि ये सर अनडिफाइंड आ गया. अनडिफाइंड नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 0 नहीं होगा तो क्या होगा? 0.999 कुछ भी होगा, या माइनस 0.001 लाइक दिस, मतलब क्लोजर वैल्यू होगी 0 की, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू देगी तो ये नंबर देगा बिटवीन -1 और 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा फॉर ऑल रियल नंबर -1 और 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्स एग्जैक्ट 0 नहीं पुट कर रहे हैं हम, एक्स अप्रोच टू 0 है. तो इट मीन 0 इंटू समथिंग, सम कांस्टेंट नंबर, दिस बिकम 0. एफ ऑफ 0 भी 0 था, लिमिट भी 0 हो गया, तो इट मीन लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस था और 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है. सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 मैंने इसको दिया था जब ये नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी कंटिन्यूअस प्रूव कर लिया, और बेटा यहाँ भी हमने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस, तो इट मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये अच्छे से याद रखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ये आपके पास फिर से एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, इजी है, जस्ट आपके पास कर दिया मैंने आपके लिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए हाउ टू राइट. और व्हाट वैल्यू ऑफ k f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2. तो बेटा your function is given k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2, and 3 if x equal to pi by 2. तो इसको देख लो, आपके पास जो फंक्शन है सिंपल है, दो रूल है, मतलब एक x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2. तो आपसे पूछा है कि k की क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस. तो अगेन जब भी बेटा एक नंबर आधा नंबर, तो इस डेफिनेशन का बनता ही है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इफ लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2. ठीक है, कुछ नहीं आता हो तो ये डेफिनेशन लिखी जाए तो आधा नंबर तो हर कोई क्वेश्चन में मिलेगा, बट यस यू कैन फाइंड, कोई डिफिकल्ट नहीं है. लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 मीन्स x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो रूल ये लगेगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. ठीक है, और अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि लिमिट को बेटा 0 बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है वो 0 पे होता है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन हमेशा 0 बनाने के लिए पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h
एज एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू, अगर यहाँ पाई बाई टू आएगा तो एच क्या आएगा 0, कभी अप्रोच करेगा। तो देखो जहाँ भी एक्स है वहाँ पाई बाई टू प्लस एच लिख लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन cos 90 प्लस थीटा यू नो माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस के साइन एच, और नीचे बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बच जाएगा माइनस पाई, और ये 2h हो जाएगा, पाई और माइनस पाई कैंसल, तो माइनस 2h। लिमिट h अप्रोच टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बाई 2 आउटसाइड आ जाएगा, और अंदर साइन h अपॉन h दैट बिकम 1, सो दैट इज इक्वल टू k बाई 2। तो ये आ गया लिमिट की वैल्यू k बाई 2, और डायरेक्ट वैल्यू बेटा f ऑफ पाई बाई 2, ये देखो x पाई बाई 2 है तो वैल्यू 3 है, तो ये आ गया k बाई 2 और 3। तो फ्रॉम 1 मीन डेफिनेशन में पुट कर दो, डेफिनेशन ये जो लिखी है इसकी वैल्यू आई है k बाई 2 और इसकी वैल्यू आई 3, तो ये हमने पुट कर दिया k बाई 2 इक्वल टू 3, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग k इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट सो दैट द फंक्शन, एक और क्वेश्चन आपके लिए, डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन, ताकि अब आपकी ये कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन के साथ साथ देता गया था, और कुछ क्वेश्चन बीच बीच से मैंने ये ले लिए। ठीक है, मैंने आपको कंटिन्यूटी कंपोजिट फंक्शन की भी बताई थी, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिया है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर is continuous function. So here solution f(x) equal to cos x square. अब बेटा ये सिंपल नहीं है, cos x नहीं है, क्या है cos x square। कल को ऐसा ही यहाँ पर cos square x भी हो सकता है, तो ये कंपोजिट बन गया। मतलब यहाँ दो फंक्शन है, एक x square है और दूसरा cos x है। ये जो अंदर वाला x square है इसको मैंने hx कह दिया, और जो बाहर बच गया cos x उसको मैंने gx कह दिया। ठीक है, मतलब देयर आर टू फंक्शन, तो टू फंक्शन से मिल करके ही ये बना है। बोलने का मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ तो f इज नथिंग बट नाउ दिस बिकम GOH, f बिकम GOH, आपको लास्ट में क्लियर कर दिया है। तो पहले हम देखेंगे कि hx तो होना क्या चाहिए कि hx भी कंटिन्यूस होना चाहिए और gx भी कंटिन्यूस। तो hx इक्वल टू x स्क्वायर इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस, यू कैन राइट डायरेक्टली, बिकॉज हमने ये भी मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिर भी अगर प्रूव करना हो तो ये है, देखो लिमिट x अप्रोच टू a h ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a x स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह ये आ गया a स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू भी h ऑफ a, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये कंटिन्यूटी प्रूव हो गई। a इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू द डोमेन, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और यू कैन राइट ओनली डायरेक्टली। ठीक है, शो करना हो तो लाइक दिस। सेम वे पे gx इक्वल टू cos x इज अ कोसाइन फंक्शन। तो अभी पीछे क्वेश्चन लिया था मैंने कि प्रूव दैट साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो जैसे मैंने साइन एक्स किया था वैसे ही कर सकते हैं। शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख भी दिया कि दिस इज योर कोसाइन फंक्शन विच इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लिमिट एक्स अप्रोच टू gx, आप सब्स्टिट्यूशन से शो कर सकते हैं इसको, तो आपने देखा था ये cos a ही आएगा और ये g ऑफ a। So it means both functions are continuous since gx as well as hx are continuous. So both are continuous. So therefore their composition is also continuous. ये देखो ये लिखा गया GOH of x means g is a function of hx. What is hx? hx is x square. So g of x square. So g क्या था cos x. तो इसका मतलब अंदर x square की जगह cos x square. So it means this is also a continuous function for all real number. So therefore fx क्या है कंपोजिट फंक्शन है GOH of x, तो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कल बेटा कंटिन्यूटी में यही बताया था कि अगर कोई फंक्शन f ओ g होगा तो मैंने आपको बताया था कि g शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और उसके बाद बताया था कि f शुड बी कंटिन्यूअस एट g ऑफ a। ठीक है, देन योर f ओ g इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस वक्त आपके पास दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है जिनकी कंपोजिशन है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लास्ट मैंने आपके लिए फिर से ये क्वेश्चन लिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय दिस fx इक्वल टू mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1। इजी क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, कोई टफ नहीं है। ये भी मैंने लेकर के किया ताकि आपको एक और टाइप क्लियर हो। अब mod x एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है।
तो आपको बताया था कि if two function are continuous then their sum is also continuous, their difference is also continuous, their multiplication is also continuous, their division is also continuous provided denominator g of a not equal to 0. ये सारी कंडीशन आपको, तो इसका मतलब मैं इसको सेपरेटली प्रूव करके बताऊंगा कि मॉड एक्स जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो कंटिन्यूस है। अगर आपने प्रूव करना तो आप बिल्कुल शो कर सकते हैं। मैंने आपको मॉड एक्स की कंटिन्यूटी बताई हुई है, ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया। एफ एक्स इज नथिंग बट जी एक्स, दैट इज मॉड एक्स, एंड एच एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 1. सो जी एक्स इज मॉड एक्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है प्रूव दैट एवरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। तो जब बेटे प्रूव करने की बात आती है तो केसेज में प्रूव करना, क्योंकि मॉड एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। अब ऑल रियल नंबर है तो आप इसमें फिर मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0. So it means you can take cases, that is case 1 as well as case 2. So case 1, that is a number greater than 0, and case 2 you can take the one you can take and a not equal to 0, and another you can take when a less than 0. Already I have told you in this way. So we have already proved that this function is a continuous. तो मैंने यहाँ पर just mention किया कि it is absolute value function, and we know every absolute value function is a continuous. And hx is also absolute value function, so it is also continuous function. And difference of two continuous function is also continuous function. So therefore, fx क्या था, इन दोनों का difference है, तो f is a continuous function. So there is no point of discontinuity, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि find the any point of discontinuity if there. So it means there is no point of discontinuity. I hope that you have understood this point. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सो अच्छे से बेटा इसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक कंसेप्ट को। तो आई होप ये मैंने आपको कुछ बीच बीच के मेन क्वेश्चन लिए डिफरेंट टाइप के, सो दैट यू कैन कवर दिस होल एक्सरसाइज, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वी विल डू डिफरेंशिएबिलिटी, बिकॉज इफ यू नो द कंटिन्यूटी देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर हो गया? तो अगले लेक्चर तक बेटा आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कल इसके पूरे एग्जाम्पल के साथ आप आज ही इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तो ताकि कल हम अगले लेक्चर से स्टार्ट कर सके डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ऑल द बेस्ट।